وکلا کے آنے سے آپ نہیں سمجھتے کہ وکلا نے آ کر مہادرائی تو تبھی شروع ہوئی نا کہ پیپل کے پی ٹی آئی کی جو اصل قیادت تھی وہ وکیلوں نے پیچھے کر دی. پاشا صاحب وکلا نے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے بنانے میں شامل جو آپ نام ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح, وہ تو ان کا خیر ان کا کمپیریزن موجودہ کسی بھی قیادت کے ساتھ کرنا وہ تو ہماری خام خیالی ون اینڈ ون, ٹھیک ہے. تو وکلا نے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی ضرورت پڑی ہے ملک کو, دیکھیں اس سے پہلے, یہ تو اب موجودہ کرائسس ہے, اس سے پہلے جب مشرف کے دور میں بحالی عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی, اس میں جو رول ادا کیا تھا وہ بھی ابھی تک سب کے لیے فقید المثال ہے, ٹھیک ہے. اس ایک جرنیل کو, سٹنگ جرنیل کو جھکنے پر مجبور کر دیا, جھکنے پہ مجبور کیا, پھر اس کو آہستہ آہستہ مطلب اس کو وکلا نے ہی وہ رستہ بنایا تھا جس کی وجہ سے ان کو آخر کار گھر جانا پڑا, کیونکہ اگر وہ سٹینڈ نہ لیتے اور ان کو وہاں پہ ان کی بات نہ مانتے تو وہ کوئی شک اس میں کامیاب نہ ہوتے. لیکن اب جو آپ نے موجودہ کہا, یہ دیکھیں ان کی جماعت کو ہمیشہ وکلا نے ساتھ دیا حقیقت کا, جہاں سمجھا انہوں نے. دیکھیں وکلا برادری میں وہ لوگ بھی ہیں جو پیپل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, وکلا برادری میں وہ لوگ بھی ہیں جیسے ایسن بون گروپ وغیرہ ہے تو وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں, اسی طرح اور گروپ بھی ہیں جو پی ٹی آئی کو کرتے ہیں. لیکن اس وقت موجودہ اکثریت, چونکہ یہ لیگل بیکنگ ہے, پی ٹی آئی کی مجبوری تھی اس وقت, کوئی عام آدمی ان کی سیٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا, وہی سیٹ یا ٹکٹ خوف کا عالم تھا, تو وہاں پہ وکلا برادری نے ان کا ساتھ دیا. اور دوسرا وہ جو بات آپ نے ناز بلوچ سے کہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں بینگ اے لائر, میری سوچ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے اس وقت کیا تھا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, تاکہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق تھا وہی عمل دہرانا چاہیے, نہ کہ ہم یہاں کسی کی ریونج لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی کو سزا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تو آپ کو حقیقت میں وہی عمل دہرانا چاہیے جو قوم و ملک کے مفاد میں ہو اور آئین کی بحالی اور حکمرانی کے لیے ہو. ہاں, جو پی ٹی نے اس وقت کیا وہ بھی غلط تھا, جو اب موجودہ گورنمنٹ کر رہی ہے اگر وہ کسی حد سے بڑھ رہی ہے, یہ جیسے کہ انہوں نے کہا اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم, تو وہ بھی غلط کر رہی ہے. ہمیں اس کے قانون کا ساتھ دینا چاہیے. امجد اقبال صاحب, 6 جولائی کو پی ٹی آئی جلسہ کر رہی اسلام آباد میں, 2 نکاتی ایجنڈا, مہنگائی کے خلاف اور اپنے قائد کی رہائی. کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کچھ نتیجہ نکلے گا؟ ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ جناب انقلاب آ جائے گا, لیکن آپ بتائیے. بات یہ ہے کہ یہ سیاسی ایکٹیویٹی جمہوریت کا حصہ نا ہوتی رہنی چاہیے, سیاسی جلسے بھی ہوتے رہنے چاہیے ہر, تاکہ اپنے اپنے ورکرز کو, اور اسپیشلی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی ایکٹیویٹی ضرور ہونی چاہیے, موبلائز کرنے کے لیے, اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے کے لیے. جو بات آپ نے کی کہ مہنگائی کے خلاف, یعنی ٹھیک ہے نا, اس میں ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں, اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے سارے معاملے کے اوپر کہ وہ مہنگائی کیسے ختم ہو سکتی ہے, کیا جلسوں سے کبھی مہنگائی ختم ہوتی ہے یا جلسوں سے مہنگائی آتی ہے, دونوں صورتوں میں, کہ دونوں صورتوں میں ایسا کوئی کچھ نہیں ہوتا. ہاں, کچھ ایسا معاملات ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو جلسہ ایسا کر کے بیٹھ جائیں کہ جو کہ لمبا چلے اور اس وقت کوئی ملک میں بڑا کام ہونے والا ہو تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ رک جائیں, آپ نے بہت خوبصورت بات کہی. جماعت اسلامی نے جو اعلان کیا ہے حق دو عوام تحریک کا, اور اس میں انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ لمٹ لیس ٹائم کے لیے دھرنا ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں خطرہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی میری بات سنیں, دیکھیں میں 2014 کے دھرنے کی بات کر لیتے ہیں. ہم 120 دنوں کا تھا یا 100 کتنے دنوں کا تھا, 126 اتنا ہی تھا نا, 125 دن, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا نا. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, لیکن اس وقت حکومت جو تھی وہ تھوڑی سی مستحکم تھی. نہیں, اس وقت نہیں, میری بات سنیں, وہ بات اتنی پرانی نہیں ہوئی کہ ہم بھول جائیں. اس وقت حکومت مستحکم نہیں تھی,
उस वक्त हुकूमत तो बड़ी परेशान थी, हुकूमत परेशान हो गई थी। नहीं, हुकूमत सियासी एक्टिविटी की वजह से परेशानी हुई थी, मुआशी तौर पर वो मुस्तहकम थी। इस वक्त ये है कि हुकूमत जो है वो मुआशी तौर पर अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार है। देखिए यही मैं बात आपसे करने लगा था कि देखिए उस वक्त भी मामला ये था कि अपोजिशन बैठ गई और उसके पीछे कुछ और चीज़ें थी जो आपको पता है, सबको पता है, ठीक है ना, वो उसकी वजह से वो परेशान थी। आज भी अगर कोई ऐसी चीज़ हुई, देखिए अपोजिशन चाहे वो जमात इस्लामी का धरना हो चाहे पीटीआई का जलसा हो, अगर उनके पीछे कुछ और चीज़ें हैं तो कामयाब होगा। तो कामयाबी इस वक्त मुझे तो नहीं नजर आता कि पीछे कुछ है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ना ही मुझे लगता है कि ये इस वक्त का हुकूमत के ऊपर प्रेशर जरूर पड़ जाता है और सियासी जमातों का, सियासी एक्टिविटी का हुकूमतों के ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए। यही सियासी हुकूमतों का होता है। देखिए बात यह है कि सियासी हुकूमत अवाम को जवाब दे ना। अगर अपोजिशन ये कह रही है कि जी कि अवाम के लिए आपकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो हुकूमत की रिप्यूट खराब होती है। बुनियादी तौर पर इस तरह की एक्टिविटी का मकसद ये होता है कि अवाम के अंदर हुकूमत की रिप्यूट को खराब करना और अपने लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा करना। ठीक है, ये दोनों जमातों का यही मकसद है। ठीक है, दोनों जमातों का एक ही यही मकसद है। पीटीआई अपने लिए कर रही है, नून अपना जमात इस्लामी अपने लिए कर रही है। एक पॉइंट में जरूर बात करूंगा, आपने कहा था कि पीटीआई बानी की रहाई के लिए, वो भी उन्होंने दोनों का झंडा दिया। एक अलग उसको आप ये कह सकते हैं कि वो भी एक एहतजाज है ना, वो एक प्रेशर है हुकूमत के ऊपर डालने के लिए, अपना मुतालबा है कि उनको रिहा किया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि ये चूँकि दोनों साहिबान ये साहिब इल्म है, साहिब कानून है, साहिब आप इनको ये सारा कुछ करना चाहिए, वो हुकूमत ने रहा नहीं करना उनको। ये बात जहन में रखिएगा, ये उसी ने रहा करना जिससे मुतालबा वो बार बार बानी पीटीआई मुज़ाकरात कर रहे हैं। ठीक है, वहां से भी इस सूरत में रहा होना है, वहां से भी इस सूरत में कि वो कहीं उन इदारों को कह दें कि अच्छा जी ये केसेस आप वापस ले लें। आपने बात की थी कि एक जी पहले जो पीटीआई के दौर में होता रहा, नाज बलोच साहब ने उसके जवाब में कहा था कि उससे पहले, और मलिक साहब ने ये बात की कि जी कि वो जनाब पहले के केसेस थे, पुराने केसेस थे। लेकिन वो केसेस पुराने ही होते हैं या नए भी हों, उनको एक्टिवेट किया जाता है उस वक्त, उनको उस मशीनरी को कह दिया जाता है कि जी अब ये आपने कह जाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ जी पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 से 2013 तक, कितने के आदि थे उस वक्त सियासी, कितने मुकदमात हुए थे उस दौर में। आप रवायत खत्म करने की बात करते हैं ना, जो अभी मलिक साहब ने की, रवायत खत्म की थी पीपल्स पार्टी ने। ठीक है, पीपल्स पार्टी के दौर में कोई एक मुकदमा बताएं कि कोई हुआ था, कैदी भी नहीं था, कोई सियासी कैदी भी नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए जो दौर 13 के बाद से 18 तक की हुकूमत थी, उसमें फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हुआ, लेकिन उसको दोबारा से रिवाइव किया पीटीआई की हुकूमत। 2018 के बाद से आप देखिए एकदम उसमें तेजी आ गई। अब मामला ये सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता कि जी आप ना करें तो अगले ने कर लिया, आप ना करें। भाई पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था, लेकिन 2019 में तो वो गिरफ्तारियां हुई थी उनकी 20 में, उन्होंने तो नहीं किया था किसी के। मियां साहब की जो मुलायम बातें हैं इस हवाले से ठीक नहीं है। मियां साहब मौक़िफ़ ठीक है, मौक़िफ़ इनका ठीक है कि ये करना ऐसे जी अखलाकी तौर पर ठीक है, आप ये कह सकते हैं एकेडमिकली ठीक है कि ये यार ऐसे नहीं करना। प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल कौन क्या करता है। मैं देखे मैं चूँकि मेरा इनका जमात के साथ ताल्लुक़ है, इनका चले अपने वकला बरादरी के साथ, लेकिन इमरान खान साहब का मजाज जो है हम उसको समझते हैं कि वो सच्ची बात जो उनको 4-4.5 साल की हुकूमत में देखा, उनके अंदर एक मुंतकम मजाज शख्स नजर आया। ये थोड़ा सा आसान उर्दू में बता दें। आसान उर्दू में कि ये नहीं कि उनको जो उनको बुरा लगता है वो कहते हैं उठा लो इसको। अच्छा। ये उन्होंने किया, इसमें क्या मसला है। ठीक है, और उसके पीछे बेशक हो सकता है कि वो भी किसी के कहने पे कर रहे हो, हम ये इसकी गुंजाइश ये दे देते हैं ना, क्योंकि उस वक्त वो सब घी शक्कर था ना, ISI आर्मी सब। और बात हो रही है ना सेकंड क्लास की, सेकंड अपना लीडरशिप की, फर्स्ट लीडरशिप की, थर्ड लीडरशिप की जो नाज बलोच साहिबा ने की। आप 2018 के जब 9 फरवरी का जो जब धरना हुआ था, अदम एतमाद की तहरीक हुई थी, उससे पहले तो कोई गिरफ्तार नहीं था, या उसके दरमियान में, ये 9 मई के बाद हुआ ना। हाँ ठीक है, ये सारा कुछ 9 मई हुआ, इससे पहले कभी 9 मई हुआ? ये बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए। भी बहुत कुछ होता रहा। नहीं, अब बताइए कब हुआ? वो नेचुरल होता था, वो कराया नहीं जाता रहा ना सर। मैडम इन्होंने जो पर्टिकुलर मैंने आपसे जिक्र किया कि वजह क्या थी, वो ये है वजह भी कि 9 मई देखनी जैसा हादसा या सानहा पहले कभी नहीं हुआ। एहतजाज हुए
तोड़ फोड़ हुई, मारदाड़ हुई, कत्लो गारत हुई, लेकिन रियासत के साथ इस तरह कभी भी टकराव नहीं हुआ जिस तरह 9 मई का हुआ। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो आप की पार्टी जलसा कर रही है इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा है कि 2 नुकाती एजेंडा है, इमरान खान की रिहाई तो वो तो उन्होंने कह दिया होते कोई नहीं होनी, और दूसरा महंगाई के खिलाफ। तो महंगाई के मेरे कहने से कोई हतमी नहीं है, वो देखे अदालतें उनकी जमानत ले लेती हैं और रिहा हो जाएंगे, इसमें क्या मसला है। देखें आप, मैं यहाँ पे ये बात करूँगी, सर अमजद साहब ने जो बात की है कि पीपी के दौर में मुकदमे नहीं हुए थे, पीपी के दौर में रैली मुकदमे नहीं होते, उन्होंने तो बीबी साहबा की शहादत को ही हवा में उड़ा दिया था, उनका ही मुकदमा नहीं आगे लेके चले, उस मुलजिम को आज तक कटहरे में नहीं लाए, उसको ही नहीं सजा मिली, उसको नहीं तख्तादार पे चढ़ाया गया, तो वो और क्या करते, उन्होंने सिर्फ इक़्तिदार के मजे लूटने थे और जो अपने मकसद पूरे करने थे वो किए, दैट्स इट। अब देखिए 9th में की बात इन्होंने की, मैं ये समझती हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप एक अक्रंस हो जाता है, उसके एविडेंस कलेक्ट करें, उसका स्पीडी और फेयर ट्रायल करें, जिन लोगों ने वो किया है उनको आप सजाएं दें। अब एक बंदा एट ए टाइम इस्लामाबाद में भी उस पर FIR है, सरगोदा में भी उस पर ऊपर FIR है, उसके ऊपर गुजरांवाला में भी FIR है, पिंडी में भी FIR है, इस तरह से तो सिस्टम नहीं चलते होते ना। नहीं तो वो केसेस चलने देना, मेरी बात चल ही रहे हैं ना सर, बात ये देखिए, वो केसेस स्पेशल केसेस, मेरी बात सुने आप, ये देखिए उसके 103 लोगों का केस था मिलिट्री कोर्ट्स में, वो क्यों नहीं चल रहे? अब चल जब तक मिलिट्री कोर्ट्स अलाउ ही नहीं, आपकी बहुत पहले से बंद हो गया, एज पर लॉ मिलिट्री कोर्ट्स हो ही नहीं सकते। अच्छा मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुने, आपका सर वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उस पर स्टे दिया हुआ है। यस, असल में बात ये है अभी सुप्रीम कोर्ट में केस इलीगल हो रहा है। हमारे इमरान खान साहब की जो भी इस टाइम आप देखें कि वुकला तहरीक है, जैसे हम इंसाफ लॉयर फोरम है, हम अपने मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती और बहाली के लिए बात कर रहे हैं। ठीक बात, जिस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, दूसरे लफ्जों में आप उसे कह सकते हैं वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही सस्पेंड है। जिस मुल्क का आईन ही बहाल नहीं होगा, मुअत्तल होगा, वहां पे आपको इलीगल एक्टिविटी ही नजर आएंगी। एक बात, दूसरी बात आपने कही कि अवाम निकली, आपकी PTI की निकल रही है, जमात इस्लामी निकल रही है। देखिए हुकूमत बनना और बनाना बेसिक मकसद गवर्नमेंट मिशनरी का खुद एंजॉय करना नहीं होता, ओहदे लेना नहीं होता कि कोई वजीर आला बन गया, कोई वजीर आजम बन गया। आप आ रहे हैं जमहूर और जमहूरियत के लिए, इट शुड बी कंपल्सरी कि आप अपनी पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को वेल फैसिलिटेट करें, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वल राइट देता है। क्या हमारे मुल्क में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सब सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स उनके? मियां साहब, PTI का जलसा, इमरान खान की रिहाई और महंगाई के खिलाफ कमेंट्स आपके चाहिए। पाशा साहब, ये तो तमाम सियासी पार्टियों का हक है और ये आइनी और कानूनी इनका इस्तेहकाक भी है कि वो अवाम को सड़कों पे लाएं हर उस काम के लिए जो अवाम की फलाह और बहबूद के खिलाफ है, जो महंगाई का, हाँ जी, आइन वो बिल्कुल डोमेन, वो देखें सबसे वो PTI वाले धरने की तरह नहीं, मतलब आइन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली राइट ही देखें, वो कोई भी जमात खोद के ठीक है जी, उसमें देखें, इसमें जो ये चीज़ है इसकी हद तक तो बिल्कुल फेयर है। दूसरा रह गई वो जो बात है कि बानी PTI की रिहाई का दूसरा एजेंडा, वो जैसे अमजद इकबाल साहब ने कहा कि वो तो गवर्नमेंट ने नहीं करना, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो भी प्रोटेस्ट इसीलिए कर रहे हैं, वो जिसको सुना, जिन्होंने करना है वो उनको सुनाने के लिए, उनको दिखाने, प्रेशर एक डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होगा तो वो बात के लिए आमादा होंगे या कम से कम उनके नुक्ता नज़र की तरफ बढ़ेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर ये आइन के दायरे में रहते हुए कोई वायोलेशन नहीं होती तो अगर इनको करने दिया जाता है जलसा तो इसके मुस्बत हक है और मुस्बत नताइज भी निकलेंगे। हालांकि महंगाई तो आपको पता है ये हमारा मुल्क नहीं कर रहा, ये तो हम डायरेक्टली IMF के पंजे में है। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर कर लूं कि 14 महीने हो गए हैं 9 मई का मिलिट्री कोर्ट में केस चलना जो है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ था। ये केस अब 5 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये शुरू हो रहा है और इतलात हैं और क्राइन ये बताते हैं कि ये बहाल हो जाएगा मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान और 9 मई के मुलजमान का ट्रायल जो है वो होगा और फैसला
विद दिस कंडीशन होगा कि मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के अंदर ये तो ऑलरेडी है चैलेंज किया जा सकेगा आइन और कानून के दायरे में, और इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हवाला फौज कर दिए जाएंगे, या इसी उडियाला जेल में उनको फौज के हवाले कर दिया जाएगा, या फौज उनको कहीं और ले जाएगी। ये मेरी इतला थी जो मैं आपसे शेयर करने वाला था। अब हम प्रोग्राम के क्योंकि इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, हम अमूमी बात करेंगे। नाज बलोच साहिबा, आप माशाल्लाह एक सियासी रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन आप एक खातून खाना भी हैं। आप एक खातून खाना के तौर पे हमें बताइए कि इस बजट से आप पर क्या असरात मुरतब हुए हैं खातून खाना के तौर पे? सर देखें, मैं खातून सियासी खाना बात हूँ। नहीं हमने सर करनी। मैं खातून खाना हूँ, और इसके अलावा मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ कि अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उन इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगे तो ये हमारे जैसे लोगों के साथ ज़्यादती है। देखिए, आपकी पेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा जब आपके ऊपर टैक्सेस लग जाए, दूसरे लफ्ज़ों में देखें, आपका सिस्टम इस तरह से होना चाहिए कि जो लोग एक यहाँ पे देखें कि एक बंदा जो एसी पे सो रहा है वो, और एक आम बंदा जिसके घर में पंखा ही नहीं है, तो आप उनके ऊपर बराबर इक्वल टैक्सेस लगा रहे हैं। ये तो जुल्म है, अच्छा ज़्यादती नहीं, है। मैं कह रहा हूँ कि हम टेक्निकली इससे निकले। आप जी। एक खातून खाना के तौर पे आप बजट को कैसा महसूस सर कर रहे बजट हैं? के अलावा भी देखें, अगर हम जाते हैं चूल्हा जलाते हैं तो गैस नहीं होती है, बिल तो आपके आ रहे हैं, विद टैक्सेस आ रहे हैं। अगर हम बिजली की तरफ जाते हैं उसके भी यही हालात हैं। अब जो चीज़ हम अब देखें कि जो चीज़ हम 101 जैसे चीनी हम लेते थे 100 कुछ थी, अब वो कहाँ उसका रेट चला गया। ऑयल देख लें, बाकी सब कुछ देख लें। जो हम ग्रोसरी करने जाते थे, मैं अगर 3 महीने पहले की बात करूं और अब की बात करूं तो उसके अगर रेट में डबल भी कहूं तो ये कोई मुज़ायका नहीं है। और ये हम सब जो इफेक्टिव हैं, हम पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, तकरीबन हम वो मुतवस्सित लोग हैं। मुझे जो ये नज़र आता है कि ये सारे सिस्टम, मुझे यही फील होता है कि जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और हमारे जैसे लोग हैं वो सही माना में हम लोग पिस रहे हैं। पिस सर रहे हैं। एक कर रहे हैं, दूसरे की टेंशन होती है। मियां साहब, आप तो आपने माशाल्लाह कहा- साहिब शरबत आदमी हैं, आप पे तो कोई असर नहीं हुआ होगा। नहीं, बहुत सब बड़ा तो असर पता हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, आपने कहा ना कि आपके असरात, अब की बार अपनी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि मैं तकरीबन सुबह उठ के देखता हूँ कि मेरा मीटर कितने यूनिट चल गया रात। किसी बच्चे ने मतलब हाँ Change हो मतलब रही है। चेंज हो रहे हैं, मतलब ऊपर कितने यूनिट चल गए हैं, कितने चलने चाहिए थे, और पिछला बिल कितना आया, जो मैंने मुसलसल Exactly. देखा। और अच्छा, ये एक आलम है psychological tension जो होती है। कि ये देखे ना, ये टेंशन क्रिएट करेगा। वो जो मेरे सामने लोग रहते हैं वो समझते हैं कि ये बंदा सुबह उठ के मीटर देखता है, रात को कुछ करता होगा, हालांकि उनको नहीं पता कि मैं उस खौफ से देख रहा हूँ कि आई विल हैव टू पे, और मेरी स्लैब कब बदलेगी, उसको मैंने कैसे कंट्रोल करना। ये असरात है, ये आपके बजट के असरात हैं। खातून खाना के अलावा आपके मर्द हजरात, आप लोग भी टेंशन में हैं। आपको भी ज्यादा नहीं बख्शा टेंशन गया। अच्छा अमजद इकबाल साहब, आप क्योंकि पक्के और सच्चे साफ़ी हैं और आपकी कोई दूसरी इनकम नहीं है सिवाय सहाफ़त के, तो आपने बतौर सहाफ़ी शहरी इस बजट को कैसा महसूस किया? टेक्निकलिटीज़ नहीं, कोई टेक्निकलिटीज नहीं है इसमें। जो बात, जो प्रेशर पड़ा है, जो ये बजट से पहले ही बढ़ गया था। वैसे मैं आपको बताऊं, ये पिछले आप ये देखें को पिछले अगर आप 2-2.5 साल से आप देखते हैं कि जिस तेज़ी के साथ ये सारा कुछ होना शुरू हो चुका है, डिवेल्यूएशन होना, फिर आपकी कुव्वत खरीद बेसिकली कम होती गई ना हमारी, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी इनकम कम हो रही है, अगर दूसरी तरफ चीज़ों का रेट बढ़ना शुरू हो गया। और इस वक्त हम जो पिछले 4 साल पहले या 5 साल पहले जिस पोजीशन में थे, उससे हम 50%, जिस तरह से अभी नाज बलोच ने बात की कि हम ये कहूँ कि डबल हो गया, यानी आपके ऊपर बर्डन जो है वो डबल से भी ज्यादा हो गया। और आप नीचे आ गिर आपकी गए। अर्निंग वही है लाजमी सर, आपका आप अर्निंग हैंड वही है आप, हाँ, लेकिन आपकी कैपेसिटी पेइंग की बढ़ गई हुई है, डबल से भी ट्रिपल हो गई है। पहले इससे अगर आपको 1 सर केजी कोई चीज आती थी, physically, अब वो साइकोलॉजिकली, जी। मेंटली आप देखिए हर दूसरा बंदा, चाहे वो खातून है चाहे वो मर्द है, इवन बच्चे तक आपके घर में स्ट्रेस का लेवल होता है। आप बच्चे को रोक रहे थे, बेटा डोंट वेस्ट टिश्यूज,
یہ بھی پیسے سے آتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں ٹیشو کیا ہے, نومینل چیڑا ہو گیا بندہ, چیڑے ہو جاتے ہیں. میچ باکس سر ماچس کے دیکھیں, ایک ماچس سے تو سستی چیز نہیں ہے نا گھر میں. نمک کا پیکٹ جو تھا آپ 80 کا لیتے تھے, مجھے خاتون خانہ کا کہا ہے تو مجھے یاد آ گیا, جو 80 کا پیکٹ تھا سر وہ 140 120 کا ہو گیا نیشنل کا. دیکھیں آپ ایک نمک جو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ وافر مقدار میں نمک ہے, ہم اس کو باہر بھی بھیج سکتے ہیں. یہ جو کرائم ہو رہا ہے نا آپ کے ملک میں, اس کی وجہ یہی ہے مہنگائی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو فرسٹریٹڈ لوگ ہیں, لوگوں میں آپ دیکھتے ہوں گے روڈ پہ عدم برداشت ہے, لیک آف ٹالرنس ہے, تو گھروں میں بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پریشر کہیں اور ہوتا ہے, نکلتا کہیں اور ہے. وہ وجہ بنتا ہے آپ کی لڑائی جھگڑوں کی, اور چھوٹی چھوٹی نفسیاتی مسائل جو بنتے ہیں وہ سارے چونکہ پریشر آ رہا ہوتا ہے ایکسپینس کا, کہاں کرنا ہے چیزیں. مطلب ہر جو خوشحال ملک ہے وہاں کی سب سے بڑی جو خوبصورتی ہوتی ہے, وہاں بہت بڑی ایک مڈل کلاس ہوتی ہے. مڈل کلاس ہی بیک بون ہوتی ہے, اس کی ریشو ہوتی ہے ہمیشہ کسی بھی اچھی سوسائٹی کی, وہ 70 سے لے کے 90 کے درمیان موو کرتی ہے اچھی سوسائٹی کی. جو بھی ڈیولپ کنٹری آپ دیکھ لیں, وہاں کی مڈل کلاس یا عام پبلک, وہ سب میں سروائیول لیول ایک ہے. وہ 10% اس میں ایلیٹ بھی ہے, اور وہ آپ کہہ لیں کہ بل گیٹ بھی ہے اور بڑے لوگ بھی ہیں, باقی وہ 10% میں باقی لوگ جو. اور وہاں یہ نہیں عالم ہوتا کہ وہاں کو آپ کو سٹریس نہیں ہوگا, آپ کے خرچے. ہاں میری کو عادت بری ہے, میں کو اور طرح کی میرے میں برائیاں ہیں, تو پھر تو میں سٹریس سے سفر کروں گا. وہاں بھی لوگ سفر کرتے ہیں, عام آدمی وہاں سفر نہیں اس ٹینشن. پر سر ان حالات میں میں یہ سمجھتی ہوں جماعت اسلامی پی ٹی آئی نہ بھی کہے نا, ایز اے والنٹیئر رضاکارانہ طور پہ بھی ہمیں روڈز پہ آنا چاہیے. اور تاکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان ڈومین آف لا, جو آپ کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے نا, آپ کی اسٹیٹ بھی آپ کو پروٹیکٹ کرے, ویل فیسیلیٹیٹ کرے, ایکول رائٹس دے, وہاں پہ سٹیزن کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک پراپر رائٹ میں ان ڈومین آف لا میں رہتے ہوئے اپنا ایجیٹیشن پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں. بٹ ان سارے پروٹیسٹ کا کوئی آؤٹ کم بھی نکلے نا, صرف یہ نہ ہو کہ روڈوں پہ کھڑے ہو گئے, اشارے توڑ دیے, میٹرو کا بس روک دی, اس سے پازیٹیوٹی ہو, تاکہ اس کی فردر ہماری گورنمنٹ کے وہ بڑے لوگ جو خود کو تھنک ٹینک سمجھتے ہیں, وہ ان سارے سینیریو سے نکل کے کہیں بیٹھ کے چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں لائیں, کچھ امینڈمنٹس لائیں. آپ اپنے ایک سٹیزن کی لائف کو ویل فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ اس کو بیلنس لائف سٹائل دیں, تاکہ لوگوں میں جو ایک فرسٹریشن کا لیول اس قدر انہینس ہو گیا ہوا ہے اس میں کمی ہے. ایون ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا ہی لوگ سمجھیں کہ ہاں یار ہمارے لوگوں کا یہ ایک ٹی وی پہ پروگرام چل گیا, سوشل میڈیا پہ, کہ جی ہم آپ کے مسائل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ان کی تو دھینگا مشتی لگی ہوئی ہے کہ اقتدار کے لیے کس نے آگے آنا ہے, کس نے کس کو دھکا دینا ہے, کس نے تاج پہ پہننا ہے اور کس نے بادشاہت کرنی ہے. بندہ پوچھے یہ ملک پاکستان اور اس کی عوام یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں, یہ انسان ہیں, ان کو انسان سمجھا جائے. ان کے بنیادی انسانی ضروریات کے ساتھ بنیادی انسانی حقوق پامال نہ کیے جائیں. یہ بھی بنیادی حقوق کی پامالی ہے کہ آپ کے اشارے پہ چلے جائیں, ایک اشارہ 5 منٹ بھی گاڑی اگر روڈ بلاک ہو جائے تو 75 بندے آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, جس میں کوئی سفید پوش بھی ہو سکتے ہیں. وہ 75 کے 75 وہ ہیپچول نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے, اس میں ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے. اور اس پہ ہم آپ جیسے پروگرام کر رہے ہیں, بہت اچھے پروگرام ہیں. یہی چیزیں ہماری گورنمنٹ کو سوچنی چاہیے, کوئی حکمت عملی لانی چاہیے. خالی لپ سروس پہ لائف نہیں ڈیپینڈ ہوتی. آپ کے لوگ میری آپ کی اسپیچز سے پروگرام سے ایجوکیٹ تو کر رہے ہیں, لوگ لرن تو کر رہے ہیں, اویئر تو ہو رہے ہیں, لیکن ان کی افلاس نہیں مٹ رہی. جی میں دیکھیے بڑی اچھی باتیں کی ناز بلوچ نے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تجویز کیا ہے, یس ہم نے ایجنڈا کیا ہے. ہم گورنمنٹ پہ صرف ہم نکلے کہ جی کہ گورنمنٹ کو ہٹا دو, انہوں نے مہنگائی کر دی, متبادل کیا ہے ہمارے پاس, ہم کیا تجویز دے رہے ہیں. یہ ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی, یہ ذمہ داری ہے تھنک ٹینکس کی, یہ ذمہ داری ہے وہ انٹلیکچوئلس کی کہ وہ بتائیں کہ جی آپ کو یہ جو کر رہے ہیں اس کی بجائے اگر یہ کریں تو آپ کے لیے آپ کو وہ جو راہ دکھائیں نا, وہ ایجنڈا تو کوئی نہیں, وہ ایجنڈا کوئی نہیں, صرف پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. ہم لیکن ایجنڈا نہیں دیتے. بالکل اس سے ایک عام آدمی کو فائدہ نہیں ہو رہا, بلکہ آپ روڈ پہ بس رک رہی ہے 10 منٹ کے لیے, آپ
ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, मेरा आपका गाड़ी का फ्यूल ज़ाय हो रहा है। दूसरे लफ्जों में हम कोई इशारा तोड़ रहे हैं, वो हमारे ही टैक्सेस से बनी हुई चीजें हैं, ठीक हम अपने ही घर में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक ऑलरेडी हम घाटे में लोग हैं, फिर हमारे अपने मुल्क की जो रियासत की मिशनरी उसको भी नुकसान पहुंचाएं। ठीक है जी, वहाँ पे एजिटेशन हो रहा है, जुलूस हो रहा है, तो एक्स्ट्रा आप पहले से तादाद से ज्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी भेज दें, ये क्या हो रहा है, ये भी मुल्क का सिस्टम की खराबी है। मियां साहब हाँ जी, conclude हाँ, कर to- दें। to आखिरी conclude, एक मैं मिनट। ये बिल्कुल जी, उसमें यही है मेरा कंक्लूजन, तो यही है इसमें हम ना तो हम इस वक्त गवर्नमेंट बदलने के हक में हैं, ना कोई IMF की शराइत बदलने के हक में हैं, ना हम बदल भी नहीं सकते आप, ना बदल चाहे नहीं या ना सकते। आपके ना हम होते ये हुए आपका बजट या IMF से आया हुआ है, आपकी गवर्नेंस कभी नहीं थी, देखें, गुड मुल्क में आपका गवर्नेंस बजट आया है। एक ऐसी चीज है, सही रियासतों में अच्छे रियासती अदारों में अच्छे लोगों का तकर्रर करें, ईमानदार लोगों मुल्क को, के बारे में वो तो कम से कम मेरिट पे हाँ, आप वो रख होने सकते चाहिए, हैं ना, ठीक बात वो है। मेरिट पे लगाएं, जो बेहतरी आ सकती है वो तो करें। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਆਂ मतलब ਸਾਹਿਬ राइट राइट मैन फॉर राइट जॉब। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ नहीं ਅਸੀਂ सर, ਇਹ समझिए कि फिर कुछ नहीं होना। नहीं फिर ना नहीं है। सर, नहीं, नहीं हो नहीं सकता नहीं हो है। सकता सर, है, everything ये is ना possible। ये ना Everything is सोचें। देखिए, जनाब हमारे अमजद मुल्क में इकबाल एक से बढ़ साहब, के एक जनाब अच्छा मियां स्टाफ है। लियाकत अली साहब,